बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज अबाउट द कोरोनरी हार्ट डिजीज। ओके, लेट मी have the cursor towards that. Okay, coronary heart disease is basically linked with the coronary arteries, the blood vessels which are supplying to the tissues of the heart itself. As you people can see in the diagram that the coronary artery is being blocked over here. The blockage can be because of the cholesterol or because of the blood clot. So you all are very much well familiar कि जब blockage कहीं पे blood नहीं जाएगा, blood is basically transporting two main important things towards the tissue or the cell. That is the glucose and second is the oxygen. These are the two main nutrients required for the aerobic respiration. So once the area is being blocked by the blood supply, ultimately it is not getting the right amount of oxygen and right amount of the glucose. So ultimately aerobic respiration cannot take place. Energy will not be produced over here. So the cell will be depriving the oxygen and they can go into the stress condition. So what will happen then? The person whenever that is having the lack of the oxygen, so aerobic respiration cannot happen in the heart muscles, so that will be feeling the pain and that particular pain is known as the angina. Person ko angina ka attack hoga, that is the severe pain. Remember one thing, that this pain is because of anaerobic respiration एंड यू ऑल आर वेरी मच वेल फेमिलियर कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है जी, दैट इज द लैक्टिक एसिड. सो दैट एंजाइना इज बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन in which the lactic acid is being produced. जिस तरह से आपको मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, सेम आपके हार्ट मसल्स में आपको लैक्टिक एसिड की वजह से एंजाइना का पेन होता है स्वीयर. आई होप दिस विल बी क्लियर. ओके, now next point is, and ultimately whenever the complete blockage is over there, person will be having the heart attack. Okay, now coming to words, you can just see in the picture कि हमारे पास यहाँ पे blockage हो चुका है और टिश्यूज में उनकी डैमेज होना शुरू हो चुका है, इन्फॉक्शन हो रही है, नेक्रोसिस हो रही है, सेल डेड होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है इन द आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में. तो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पर हो सकता है ब्लड क्लॉट भी हो, जिसकी वजह से आपके पास फर्दर ब्लड का फ्लो ही नहीं हो रहा इन दिस डायरेक्शन. सो अल्टीमेटली द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट बीइंग सप्लाइड टू द रीजन विच इज बीइंग ब्लॉक्ड इन द नेक्स्ट एरिया. जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके फर्दर रीजन में आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. ओके, यू कैन सी हेयर. एंड what it happens, main जो इसकी cause है बेटा, that is the cholesterol. Cholesterol is the saturated fat and that is usually from the animal source. Whenever you people are eating too much fatty food or oily food, जो भी आप खा रहे हैं, fried food, definitely cholesterol की amount, LDL की amount ज्यादा है and that will be start depositing into the arteries. और यहाँ पे जो फैट डिपॉजिट हो जाते हैं अलोंग विद दैट द आरबीसी स्टार्ट बीइंग ट्रैप्ड ओवर हियर, जिसकी वजह से एक ब्लड क्लॉट भी बन जाता है. These are the causes of high cholesterol. Genetically भी कुछ issue हो सकता है, whatever you people are eating. If your weight is more, your physical activity or exercise is less, आपकी age factor old age में ज्यादा होता है, आपकी gender भी matter करती है, usually male में ज्यादा होता है because male are smoker, male are alcoholic more than the female. Alcohol and stress, all these are the contributing factor towards the coronary heart disease as well. ये you can see that is a normal artery with the normal healthy blood supply, while this is the artery which is being blocked with that of the cholesterol. एथेरोस्क्लेरोटिक plaque बना हुआ है यहाँ पर. इस plaque के बिल्डअप होने की वजह से इसकी blood supply कम हो गई है बिकॉज इसका डायमीटर आर्टरी का फर्द पहले ही कम होता है एज कंपेयर टू वेन, तो अल्टीमेटली और कम हो रहा है विच कैन बी वेरी मच फैटल फॉर द हार्ट टिश्यूज.
सो रिस्क फैक्टर्स जो आप कुछ हैं विच यू कैन कंट्रोल एंड सम आर विच यू कांट कंट्रोल, देख लेते हैं। आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं? डाइट, यू हैव टू ईट लेस फैटी फूड, लेस फूड, लेस एनिमल फैट। ओके, वेट को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर, अल्टीमेटली इन दो चीजों से आपका कंट्रोल हो जाएगा। सिगरेट को, स्मोकिंग को क्विट करना है, एंड फिजिकल इनएक्टिविटी को आपने स्टॉप करना है, आपने फिजिकल एक्टिव होना है, फिजिकली एक्टिव होना है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस क्यों कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं, स्ट्रेस इज लिंक्ड विद दैट ऑफ द रिलीज ऑफ एड्रीनालीन। एड्रीनालीन की वजह से आपका ग्लूकोज लेवल हाई होता है, अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू दैट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द ब्लड टू क्लॉट, प्लेटलेट को स्टिकी बना देगा, और इसकी वजह से आपके पास अल्टीमेटली हमारे पास हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा हो जाता है। Then the factors which you cannot control, that is your genetics, वो आपके हाथ में नहीं, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जेंडर भी आपके कंट्रोल में नहीं होता, इंक्रीजिंग एज को भी आप नहीं रोक सकते, आप डायबिटीज को भी नहीं रोक सकते, आपको नहीं पता आपका पैंक्रियाज कब खराब हो जाए। सो प्रिवेंशन कैसे करनी है? दीज आर द मेथड्स। लाइफस्टाइल चेंज करें जी अपना, स्विच टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? आपने ईट हेल्दी विच इज लो इन कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट नहीं लेनी, एनिमल सोर्स से नहीं लेनी, आपने फ्राइड फूड नहीं खाना, एक्सरसाइज करनी है, वॉक डेली करनी है। स्मोकिंग, इफ यू पीपल आर स्मोकर देन क्विट इट, एल्कोहलिक है तो क्विट इट, एंड ट्राई टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। अदरवाइज इसके पास हमारे लिए, इफ द पर्सन डिवेलप्स द कोरोनरी हार्ट डिजीज, सीएचडी डिवेलप हो जाता है, तो उसके कुछ ट्रीटमेंट्स भी हैं। नंबर वन इज टू लोअर द कोलेस्टेरोल लेवल ऑफ द पर्सन, कुछ मेडिकेशन दे दी जाती है। नंबर टू इज सर्जरी। सर्जरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिमेंबर द पॉइंट इज एंजियोप्लास्टी, ठीक है। एंजियोप्लास्टी में हम या तो स्टंट पर्सन में डाल सकते हैं, या फिर आप जो है बैलून एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। इसके अलावा बाईपास सर्जरीज आ जाती हैं, और अल्टीमेटली अगर कोई भी चीज काम नहीं करी तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बट दैट इज टू मच एक्सपेंसिव। और यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूं तो व्हाट कुड हैपन, टिश्यू रिजेक्शन का चांस हो सकता है, आपके पास आपका इम्यून सिस्टम माइट नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट दोज कार्डिक सेल्स जो आपकी बॉडी के हैं ही नहीं और किसी डोनर से लिए गए हैं। ओके, सो सर्जरीज की तरफ आते हैं। बाईपास की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकता है। बाईपास बेसिकली आपने एओर्टिक जो आर्च होती है वहां से आपने एक जो ब्लॉक एरिया होता है वहां पर एक आर्टरी या वेन को इनक्राफ्ट करना होता है। रिमेंबर, आर्टरी करते हैं दैट इज गुड, तो उसका डायमीटर चूंकि उसमें ल्यूमेन नैरो है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर वेन यहाँ पर बाईपास की जगह पे यूज की जाएगी तो रिमेंबर, वेन इनक्राफ्ट करते हुए डॉक्टर्स या सर्जन्स को वेन में वेल्व की डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और वेन इसलिए चूज की जा सकती है, उसकी ऑप्शन क्या है कि बाय द पर्सन इज गोइंग टू चूज द वेन फॉर द बाईपास, क्योंकि वेन का डायमीटर जो है दैट इज ब्रॉड, वाइडर होता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल फर्दर फ्यूचर में डिपॉजिट होने का चांस दैट विल बी वेरी मच लेस। सो डिसएडवांटेज एडवांटेज मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है स्टेंट जो यूज किए जाते हैं। स्टेंट बेसिकली एक हमारे पास मेटालिक मैशवर्क होता है, एंड दैट इज बीइंग इंसर्टेड थ्रू द कैथेटर। कैथेटर एक ट्यूबिंग होती है जिसके थ्रू इंसर्ट किया जाता है। अभी मैं आपको प्रोसीजर दिखा देती हूँ, मैं इन डायग्राम में एक्सप्लेन कर देती हूँ। दैट इज एन आर्टरी विच इज बीइंग ब्लॉक्ड बाय द कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, प्लाक बना हुआ है यहाँ पे। कैथेटर के थ्रू आपने डाला है एक बैलून, बैलून के ऊपर है जी क्लोज्ड स्टंट, दैट बैलून इज स्टिल डिफ्लेटेड, अभी इसमें उसको हवा नहीं डाली गई, इन्फ्लेट नहीं किया गया। whenever that catheter is with the mesh of stent is being reached at the right place, और इसको डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे होते हैं थ्रू अ कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, कि राइट जगह पर जाना चाहिए इसको। सो जब ये राइट जगह पे पहुंच जाता है द बैलून इज इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेशन के बाद अल्टीमेटली मैश वर्क ओपन हो जाएगा, स्टेंट आपके पास एक्सपैंड हो जाता है, ओपन हो जाता है, दैट इज गोइंग टू पुश अ प्रेशर ओवर द प्लाक, और जिसकी वजह से प्लाक थोड़ा सा पुश हो जाता है, दैट इज बिकमिंग कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड विद एंड अटैचिंग विद द वॉल्स ऑफ द आर्टरी। और उसके बाद क्या किया जाता है, बैलून को डिफ्लेट करके वापस विदड्रॉ कर लिया जाता है, वापस निकाल लिया जाता है थ्रू द कैथेटर, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है,
ठीक है, और क्यों, बिकॉज योर आर्टरी हैज बिकम वाइडन अगेन. नाउ दैट इज द balloon angioplasty with the stent. एंड ये भी मैंने आपको प्रोसीजर सारा बता दिया. यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आपके पास ये दूसरा मेथड है जिसमें आपने स्टंट नहीं डालना, बस खाली बैलून इज बीइंग यूज. बैलून जब इसको आपने एक्सपैंड किया जाता है तो दैट इज पुशिंग द कोलेस्ट्रॉल प्लाक अगेंस्ट द वॉल. अब ये इतना सॉलिड और कॉम्पैक्ट, बिकॉज दैट प्लाक जो अभी ऊपर फर्स्ट पिक्चर में है दैट इज लूज कंपैरेटिवली, इसमें स्पेसेस हैं. जब बैलून इन्फ्लेट किया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉम्पैक्ट और अल्टीमेटली यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच. होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. कोई क्वेश्चन है तो डू कमेंट मी, मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज.